marriage isn't some far-off, obscure battlefield that doesn't have much to do with the war between the seed of the woman and the seed of the serpent. The devil from the beginning comes and drives a wedge between Adam and Eve and then puts them together against God. He is dealing with family issues, with marriage issues from the beginning. Marriage is the very front of the front, which is why he began his assault here. And so the serpent is about the business. It is his goal to pervert marriage, to turn it into something that it's not designed to be. The biblical foundation for intimate marriage, friends, is that we look outside ourselves. Husbands and wives are on a shared quest. Even as we together, corporately, as the wife of our heavenly husband, are about the business of remaking all things, we're about the business of total world conquest. But the conquest begins and ends with this shared quest, this Alpha and Omega, that each of us would become more like Jesus, our husband. And you and I both know, oh Lord, what I ought to want, that what I should long for is that I and my wife and my children, that we would look more like Jesus. Therefore, O Lord, give ear to my lips and look past the weakness of my heart as I ask you this: bring us whatever it takes. Lord, though I may grumble in the midst of us, send us exactly and only what we need to become more like your Son. Once again, we welcome you all to this Bible study series on Family Matters, which is led by Reverend Dr. R.C. Sproul Jr. Today, the topic on which we will be dealing is family worship and holiness. We hope and pray that our time together will be blessed. फिर से एक बार हम आप सभी का परिवार ज़रूरी है बाइबल अध्ययन की श्रेणी में स्वागत करते हैं, जिसमें हमारा नेतृत्व डॉक्टर R.C. स्प्राउल जूनियर कर रहे हैं। आज जिस विषय पर मनन किया जाएगा वह है पारिवारिक आराधना और पवित्रता। हमारी यह आशा और प्रार्थना है कि यह समय हम सभी के लिए आशीषित होगा। Before we proceed, shall we all look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्य तारनार प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे राजा है, आप हमारे उद्धार करता है। परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रत्येक व्यक्ति इस समय यहाँ पे जो मौजूद है, संदेश को सुन रहे हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिएगा परमेश्वर पिता, और आपके सेवक जब अपने वचनों की प्रभु जी अलग अलग प्रकार की फोड़ हमारे सामने रखे प्रभु जी, हम उस वचनों के अध्ययन को हम प्रभु जी हम समझने पाए और हमारे हृदय में उतारने पाए। वचन को न केवल सुनने वाले परंतु सुनकर उसका पालन करने वाले, उससे कैसे हम कृपा चाहते हैं परमेश्वर पिता। विशेष तौर पर प्रभु जी मांगते हैं हमारे मुख के वचन और हमारे हृदय के मननों को आपके नजर में मान्य कीजिएगा। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रत्येक से बातचीत कीजिएगा। यीशु मसीह के द्वारा हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। Amen. I'm a reader. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। I read every chance I get. जहाँ जब मुझे मौका मिलता है मैं पढ़ता हूँ। And it's been that way for most of my life. और मेरी पूरी जिंदगी इस प्रकार गुजरी है। When I was a little boy eating my breakfast, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं अपना सुबह का नाश्ता खाता था, I would read the cereal box. वहां पर जो सीरियल का बॉक्स था उसके ऊपर मैं पढ़ता था क्या लिखा है। Wherever I was looking for something to read. जहाँ कहीं पर भी था, मैं सब जगह कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए ढूंढता था। And it often didn't matter what it was. और काफी बार मायने भी नहीं रखता था क्या मैं पढ़ता हूँ। Which is how I found myself reading something I wouldn't expect to read on an airplane. और इसकी वजह से ही मैंने अपने आप को, मेरी इस आदत की वजह से मैंने अपने आप को जब मैं एक विमान में था तब एक ऐसी चीज को पढ़ते हुए पाया। In the United States, when you fly on an airplane, जब यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर जब आप प्लेन में उड़ते हैं, there's always in the pocket in front of you हमेशा सामने की जेब के अंदर a catalog of things you can buy. एक ऐसी सूची होती है ऐसी चीजों की जो आप खरीद सकते हैं। It's called the Sky Mall. उसको स्काई मॉल कहा जाता है।
And I was reading through one of those when I was stuck on a plane one day. और प्लेन में जब मैं अटका हुआ था तब मैं उसमें से उस क्वाई मॉल को पढ़ रहा था And I came upon something that really puzzled me. और मैं एक ऐसी चीज मैंने पढ़ी जो सचमुच में मुझे उलझन में डाल दिया जिसने It was a service that you could sign up for. ये एक ऐसी प्रकार की सेवा थी जो आप अपने जीवन में उसको ले सकते हैं Where someone else would read for you जहां पर कोई और व्यक्ति आपके लिए पढ़ेगा all the important business books. हर एक प्रकार की जो व्यवसाय के आधारित जो भी किताब है वो आपके लिए पढ़ेगा So if you were a very busy businessman, तो अगर आप बहुत ही व्यस्त व्यवसाय वाले इंसान हैं अगर you could get what you would call an executive summary of these books. तो आपको शायद आप हम जैसे कहेंगे कि एक प्रकार की संक्षिप्त में आपको हर एक किताब का शिक्षण देंगे वो लोग Which led me to wonder, जिसने मुझे इस प्रकार सोचने से रखा if we wanted to give an executive summary of the Bible, what would it be? अगर हमें बाइबल का इसी प्रकार से संक्षिप्त में अगर एक सूची अगर एक शिक्षण देना होता था तो हम कैसे देते If someone said to me, boil it down to me for me, RC, what do I need to know? और अगर कोई मुझसे आके कहे कि आरसी मुझे बाइबल में से एक बात बताओ मुझे क्या जानना है मैं सब कुछ जान लूंगा What's the basic underlying calling that God has for me? और परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी सबसे मूलभूत ऐसी बुलाहट दी है जो मुझे जानने की जरूरत है Well, you might not be surprised to know that I would probably suggest the Dominion Mandate. तो अगर आप शायद अचंभित नहीं होंगे अब तो कि अगर मैं उन्हें कहूं कि सत्ता करने की बात सृष्टि के ऊपर राज चलाने की बात जो बुलाहट है वो सबसे मूल है When we started this series, I talked about this being the first command that God gave. और जब हमने ये शिक्षण का शुरुआत किया तब हमने बताया था कि सबसे पहली ये आज्ञा थी जो परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी And God does not change. और परमेश्वर बदलते नहीं है But you could also argue it's the greatest commandment. परंतु आप ऐसा भी तर्क वितर्क कर सकते हैं मेरे साथ कि वो तो एक महाआज्ञा की बात है Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and your neighbor as yourself. अपने परमेश्वर से अपने पूरे बल से मन से और अपनी शक्ति से प्रीति कर और साथ साथ में अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्रीति कर Well, the Bible says that Solomon was the wisest man in the whole of the world in his day. और बाइबल कहता है कि सुलेमान जो था वो उसके समय का सबसे ज्ञानी पुरुष था And at the end of Ecclesiastes, he gave an executive summary. और हम पाते हैं सबोधिक्षक के किताब के अंत में उसने एक प्रकार की ऐसी संक्षिप्त का शिक्षण उसने भी दिया When he said, fear God and obey all that he commands. और उसने उस प्रकार वहां पर लिखा कि परमेश्वर का भय रख और जो भी वो कहे उसकी आज्ञा का पालन कर But wait, there's more. और रुको और भी ज्यादा है The prophet Micah also gave an executive summary, मीका ने भी एक प्रकार की ऐसी संक्षिप्त में शिक्षण दिया calling on us to do justice, to love mercy, and to walk humbly with our Lord. हमें नम्रता से परमेश्वर के साथ चलने के लिए कहा न्यायी बनने के लिए कहा हमें But if you don't like those because they're in the Old Testament, अगर आपको अच्छे नहीं लगे था क्योंकि वो पुराने नियम में है you can go to the New Testament. आप नए नियम की तरफ जाइए Jesus in the Sermon on the Mount said, seek first the kingdom of God. यीशु मसीह ने पहाड़ पर के प्रवचन में कहा कि परंतु आप परमेश्वर का राज्य सबसे पहले ढूंढिए But the same Jesus also gave the Great Commission. और वही यीशु मसीह ने महा जो आज्ञा थी शिष्यों को मत्ती 28 में वो भी दी Go into all the world and disciple the nations. पूरे दुनिया में जाओ और सबको जाके शिष्य बनाओ Well, now at this point, we have so many summaries. और अब तक में हमने देखा कि बाइबल की हमने कितनी सारी संक्षिप्त की ऐसे शिक्षण हमने देखे That we might want to try to see if it's possible to summarize them into one summary. और फिर हम शायद ये भी सोचे कि अभी बाबा इतने सारे शिक्षण है तो इनको भी हमें इकट्ठा करके बस एक शिक्षण पे जाना है I mean, you don't get to pick and choose which one of these you're going to pursue. क्योंकि हम लोग जो है ऐसे चुन नहीं सकते कि किसका हमें पालन करना है और किसका नहीं Oh, I'm a fear God and obey all that he commands guy. मुझे तो परमेश्वर जो भी कहे उस परमेश्वर का भय रखना और वो भी जो कहे उसकी आज्ञा का पालन करना है बाबा And Joel is a be fruitful and multiply guy. और जो जोएल है वो तो फलवंत होकर बहुगुणित हो वो वाली आज्ञा का पालन करेगा That's not how it works. ऐसे नहीं चलता Well, my spiritual and physical ancestors मेरे जो आत्मिक और शारीरिक जो मेरे पूर्वज थे
looked at this problem of so many summaries उन्होंने ये बहुत सारे शिक्षणों का इस समस्या को देखा उन्होंने, and their solution was to write one more. और उन्होंने जो हल निकाला वो तो ये था कि उन्होंने एक और लिखी। They put together what's called the Westminster Shorter Catechism, उन्होंने वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म को वहां पर लिखा, which is a series of questions and answers designed to explain the fundamentals of the faith. और जो एक प्रकार की जवाब और सवाल और जवाब की एक श्रेणी है जिसके अंदर हम पाते हैं मसीह जीवन के मूल विश्वास क्या क्या है उसमें लिखे हुए हैं। And the very first question is, और सबसे पहला उसके अंदर का प्रश्न ये है, what is the chief end of man? मनुष्य का आखिर में हेतु क्या है? That means here comes an executive summary. मतलब यहाँ पे शायद एक संक्षिप्त की शिक्षण आ रही है हमारे लिए, Here comes your reason for being. और यहाँ पे कारण आ रहा है कि आप क्यों है। Here's what God calls you to do. ये जो बात है वो परमेश्वर आपको बुलाते हैं करने के लिए। And their answer was और उनका जवाब ये था to glorify God and to enjoy Him forever. कि परमेश्वर की महिमा करना और हमेशा उनमें आनंदित रहना। Now, I suspect that if you're a believer, you'd have no objection to the idea of glorifying God. मैं ये मानता हूं अगर आप एक विश्वासी है तो परमेश्वर की महिमा करने की जो बात है इसमें आप कोई भी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे। As believers, we understand that principle, विश्वासी होने के नाते हम इस पूरी विचार को, इस शिक्षण को मानते हैं, and many times that means that we aspire to do great things for the kingdom of God. और बहुत सारी बात इसका मतलब ये भी होता है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अनेक ऐसी चीजें को करने का प्रयत्न भी करते हैं, Or we hope for opportunities to suffer for His kingdom. और काफी बार हम परमेश्वर के राज्य के लिए दुख सहन करने के लिए भी हम राह देखते हैं। We decide that we need to be strong in the face of hardship for His glory. हम निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे मुश्किल समयों के अंदर मजबूत खड़े रहना है, डट के खड़े रहना है। But this whole idea of enjoying God puzzles us. परंतु ये जो पूरा जो विचार है परमेश्वर में आनंदित होना, वो शायद हमें उलझन में डालता है। Glorify God, I understand. परमेश्वर को महिमा देना, महिमावंत करना वो मैं समझता हूँ, But what's this enjoying of God all about? और परमेश्वर के साथ आनंद मनाना, परमेश्वर में आनंदित होना, इसका मतलब क्या है? Well, friends, I want to suggest परंतु मेरे मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ that Dr. John Piper कि डॉक्टर जॉन पाइपर जो है, never spoke a truer word उन्होंने कभी भी इतनी अच्छी बात नहीं बोली than when he said this. जब उन्होंने ये कहा, God is most glorified in us परमेश्वर सबसे महिमावंत हम में होते हैं when we are most satisfied in Him. जब हम उनमें सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। God is never more glorified in us than when we are most satisfied in Him. परमेश्वर सबसे ज्यादा महिमावंत तब होते हैं जब हमारे जीवन में हम उनसे सबसे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। And of course, when we die, और हम जब मर जाते हैं, we'll be completely sanctified, हम पूर्ण रीति से जब शुद्ध हो जाएंगे, and we'll behold His glory, और जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, and we'll be able to fulfill this calling forever. और ये जो बुलाहट है परमेश्वर की महिमा बढ़ाना, महिमा करना, उस बुलाहट को हम तब पूर्ण करेंगे परिपूर्णता में। We will revel in His holiness. हम परमेश्वर की पवित्रता में जी पाएंगे, And in doing so, we'll be going back to the garden. और फिर ऐसा करते ही करते हम वापस वो बगीचे में जाएंगे When God walked with Adam and Eve in the cool of the evening, जिसके अंदर हम पाते हैं संध्या समय में परमेश्वर जो था आदम और हवा के साथ चलता था। in heaven we will draw near to Him. स्वर्ग में हम परमेश्वर से ज्यादा नजदीक जाएंगे, And we will enjoy the blessing that Adam and Eve had. और आदम और हवा को ये जो आशीष थी उसे हम भी अपने जीवन में मना पाएंगे। Don't forget this about the garden. बगीचे के बारे में ये बात कभी मत भूलना। It was wonderful that there was no death or disease. वो बहुत ही अद्भुत बात थी कि वहां पर कोई भी प्रकार का मरण या बीमारी नहीं थी। It was wonderful that lions lay down with lambs. वो बहुत ही अद्भुत बात थी कि जो सिंह थे, जो शेर थे, वो मेमनों के साथ बैठते थे, उठते थे। It was wonderful that they could eat of any of the fruit of the trees except for one.
और ये बहुत ही अद्भुत ये भी बात थी कि वो उस बाग में के सब पेड़ों में से खा सकते थे एक को छोड़कर। It was glorious that Adam and Eve were at peace with each other. और ये बहुत ही महिमावंत बात थी कि आदम और हवा जो थी एक दूसरे के साथ शांतता में जी पाते थे। But greater than all of those together परंतु इन सब चीजों को एक साथ रख के उससे भी एक महान बात थी, is that Adam and Eve walked with God. वो तो ये थी कि आदम और हवा परमेश्वर के साथ चलते थे। And that is where we're going. और वहीं पर हम जाने वाले हैं। Which is precisely why और इसी के लिए ही I don't like family devotions. मुझे पारिवारिक ये जो मनन अध्ययन होते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। Can you all tell that Joel's feeling a little puzzled? क्या आप लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ही उलझन में पड़ चुके हैं ऐसा सुन के? See, he's got to translate what I say. जो भी मैं कहूंगा उसका वो भाषांतर करेगा। And he probably thinks I just made a mistake. और वो शायद ऐसे सोच रहा है कि साहब ने एक गलती कर दी वहां पर, Because I said I don't like family devotions. क्योंकि मैंने कहा कि मुझे पारिवारिक मनन या अध्ययन नहीं पसंद है। And he has to decide, और उसे अभी निर्णय करना है यहाँ पर do I say what he said, कि वो जो कहे मैं कहूँ या नहीं, or do I say what I think he meant? और मैं शायद ये कहूँ वो जो कहना चाहते हैं वो मैं कहूँ या नहीं। If I say what he said, it won't be true. अगर मैं वो जो कहे वो मैं कहूँ तो शायद वो सही नहीं होगा। Let's see if he says what I say or if he says what's true. और आइए देखते हैं कि वो जो कहते हैं वो मैं कहता हूँ और सही है कि नहीं। I am better looking than Dr. Sproul. मैं डॉक्टर स्प्रोल से अच्छा दिखता हूँ। You'll have to let me know what he said and we'll have to figure out whether it's true. हमें देखना पड़ेगा कि सचमुच में सच कह रहे हैं कि नहीं। When I say I don't like family devotions, जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे पारिवारिक अध्ययन नहीं पसंद है, I'm not saying that I don't like when families gather together for worship. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि जब परिवार एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए जब जमा होते वो मुझे नहीं पसंद है। What I'm saying is I don't like that word devotion and what it implies. मुझे सचमुच में ये नहीं पसंद है कि वो अध्ययन करना और उससे हम और उसके क्या-क्या कारण या फिर उसके क्या-क्या हेतु निकालते हैं। It sounds to my ears, it's like something we do to demonstrate our commitment. ये तो शायद ऐसे मुझे सुनाई देता है या फिर ऐसे लगता है ये तो ऐसा कुछ है जैसे जिससे कि हम परमेश्वर का हमारे प्रति जो समर्पण है उसके सामने हम उसको कुछ दे रहे हैं। That it's a duty and an obligation. कि मतलब ये तो एक प्रकार की हमारी सेवा है और ये तो एक प्रकार की हमारी जिम्मेदारी है। Like when in Islam they're called to pray 5 times a day. जैसे कि हम मुस्लिम धर्म में भी पाते हैं कि 5 बार उनको नमाज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। But instead, when a family gathers together to worship, परंतु जब परिवार एक मिलकर एक साथ होकर आराधना के लिए जब जमा होते हैं, we don't do it to show God how committed we are. हम परमेश्वर को ये दिखाने के लिए नहीं करते कि कितने समर्पित हम हैं, We do it for us to remember how committed He is. परंतु ये हम इसलिए करते ताकि हमें याद रहे कि कितना समर्पित वो है। It's not a burden that we fulfill because we've been saved and we have a duty to do so. हम बचाए गए हैं और हमारी ये सेवा है, इस प्रकार का बोझ है हम पर, इसलिए हम ये नहीं करते। But instead, it's an invitation we accept because it's an invitation to joy. परंतु ये एक प्रकार का ऐसा न्योता है जिसको हम अपनाते हैं क्योंकि ये न्योता तो आनंद के लिए है। Now, sometimes we'll do this for a host of practical reasons. और काफी बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे व्यवहारु कारणों के लिए हम इसको करते हैं। There are blessings that come from this practice. इसको करने से शायद बहुत सारी आशीष आती है हमारे जीवन में। Many families do family worship just before the children go to bed. और बहुत सारे परिवारों में शायद बच्चों के सोने से पहले इस प्रकार का मनन करते हैं वो लोग। And it becomes an opportunity for the child to settle down and calm down and get ready to sleep. और ये शायद उनके लिए एक कारण बन जाता है जिसके अंदर बच्चे जो है वो शांत हो जाएंगे और सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। Second is that children can be trained to sit still so they'll do better at Sunday worship.
और दूसरा कारण कुछ लोगों का ये भी होता है कि ऐसे समय के अंदर बच्चे शांत बैठना सीखेंगे, सीधा बैठना सीखेंगे, ताकि रविवार के या फिर इतवार की जो कलीसिया होती है, कलीसिया के भक्ति सभा में वो लोग शांत बैठ पाएंगे। Another blessing is that our children have the opportunity to learn the faith. और दूसरा एक शायद आशीष का कारण ये भी हो कि हमारे बच्चे जो है वो हमारे विश्वास को सीख पाए। It's an opportunity for our children to learn the songs that we sing when we gather together for worship. और ये एक ऐसा भी मौका है जहां पर हमारे बच्चे जो है उन गीतों को सीख पाए जो हम आराधना के समय में गाते। There's the blessing that it's family time together. ये एक और आशीष है कि ये शायद परिवार का एक समय है जो एक साथ मिलकर वो लोग बिताते हैं। And another blessing is it demonstrates to us and to our children that our faith is not just for Sundays. और ये एक और आशीष है जो हमें दिखाती है कि हमारा जो विश्वास है, हमें और हमारे बच्चे को ये सिखाती है कि हमारा जो विश्वास है वो केवल इतवार के लिए नहीं है। But if that's why we do this, परंतु अगर इन कारणों की वजह से हम ये करते हैं, अगर it's still all about us यहाँ पर तो फिर भी सब जगह हम ही हम है, rather than God. परमेश्वर कहाँ है? We need to understand that worship is हमें ये समझने की जरूरत है कि जो आराधना है a royal waste of time. ये एक प्रकार का राजवी समय बिगाड़ना है। Now, Joel may be wondering if I made a mistake here again, अब शायद भाषांतर करता ये सोचता होगा कि यहाँ पर फिर से साहब ने गलती की क्या कोई, because I said worship's a royal waste of time. क्योंकि मैंने कहा आराधना एक राजवी समय का बिगाड़ना है। That idea comes from a theologian named Marva Dawn. और मार्वे डॉन नाम के एक ईश्वर विद्या के एक विद्वान के द्वारा ये विचार आता है। And she explained what she meant, और वो ये कहती है, जो उसको समझाना चाहती है वो ये है that almost everything we do for a higher purpose. और हम हमारे जीवन में जो भी करते हैं वो एक उच्च हेतु को पूर्ण करने के लिए करते हैं। But once you get to the highest purpose, परंतु आप जब सबसे ऊंचे हेतु के लिए पहुंच जाओ, आप you're not doing it for any other reason. वो आप और कोई कारण के लिए नहीं करते हैं। And so in that sense, it's not serving some other goal. और इसका मतलब है कि इस हेतु को करने से और कोई हेतु हमें नहीं मिलने वाला है। And in that sense, it's a waste of time. और उस रीति से, उस विचार से ये समय का बिगाड़ना है। But it's a royal waste of time because worship is the king of our purposes. और क्योंकि इसीलिए ये राजवी समय का बिगाड़ना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हेतु है वो राजा की आराधना करना है, स्वर्गीय राजा की आराधना करना। Our worship serves no other end. हमारी आराधना का और कोई भी हेतु नहीं है, वो और कोई भी चीज से हमें नहीं ले जाती है। Because we worship the one who is our end. क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति की आराधना करते हैं जो हमारा अंत है, जो हमारा सब कुछ है। We practice family worship because this is what we were made for. हम पारिवारिक आराधना को हम हमारे जीवन में लाते हैं क्योंकि इसी के लिए हमें बनाया गया है। And this is what we'll be doing into eternity. और यही चीज को हम अनंत काल में भी करते रहेंगे। We do this, friends, to bring heaven down upon us. मेरे मित्रों, हम ये करते हैं ताकि स्वर्ग हम हमारे ऊपर ला सके, नीचे। Well, that's all well and good, RC. ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, चलो आरसी। Good explanation about why we should do it. ये बहुत ही अच्छा कारण था कि क्यों हमें ये करना चाहिए। Can you help us know how to do it? क्या आप अब मदद करेंगे हम कैसे करें? Well, yes and no. हाँ और ना भी। I can give you some ideas, मैं आपके सामने कुछ विचारों को रख सकता हूँ, but I don't want to impose a particular model on you. परंतु मैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का एक मॉडल थोपना नहीं चाहता कि आप ऐसे ही करो। I just want to give some suggestions. मैं आपको बस कुछ सलाह देना चाहता हूँ। You might want to begin with some scripture memory. मैं चाहता हूँ आप शायद इस बात से शुरू करना चाहेंगे जिससे कि आप किस बाइबल वचनों को आप याद कर सको। Now let me explain to you a really complex way to help yourself and your children memorize verses. मैं आपको एक बहुत ही ऐसा एक तरीका बताना चाहता हूँ जिससे कि आप और आपके बच्चे जो है इस प्रकार के बाइबल के वचनों को आप मुखपाठ कर पाएंगे। You say to your children, आप अपने बच्चों से कहे,
For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। And your children say back to you, for God so loved the world. और आपके बच्चे आपके पीछे बोले क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। And then you say that he gave his only begotten son. और उसके बाद आप कहे कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। And they say that he gave his only begotten son. और फिर आपके बच्चे आपके पीछे पीछे कहे कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। And you keep doing this और आप ये करते रहे till they get it. ताकि उनको पता चल जाए, याद रह जाए। Not very complicated, is it? बहुत मुश्किल नहीं है। You don't need to be an expert. You don't have to have a big apparatus or a big program. आपके पास आपके लिए बहुत इसके लिए बहुत बड़ा ऐसा प्रोग्राम नहीं चाहिए, आयोजन नहीं चाहिए। इसके लिए ये बहुत ही आसान चीज है। ये You just read and repeat. आप बस पढ़े और उनको पीछे बोलने के लिए कहिए। I can tell you that as a father, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पिता होने के नाते I have hidden far more Bible in my heart through this process इस प्रक्रिया के द्वारा मैंने काफी सारी बाइबल की वचनों को मैंने हृदय में संभाले रखा है than I did my whole life before I was a father. और पिता होने के पहले मेरे पूरे जीवन में जितना नहीं किया था उतना मैंने अभी किया है। Including when I was in seminary. जब मैं सेमिनरी में था तब भी मैंने इतना नहीं किया था। It's interesting that what we teach our children ये बहुत ही रसप्रद बात है कि जब हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं teaches us as well. तब हम भी सीखते हैं उसमें से। In fact, it's important that you don't look at family worship ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप पारिवारिक आराधना को इस तरह से ना देखें as you instructing your children in how to worship. कि जिसके अंदर आप अपने बच्चों को सूचनाएं दे कि किस तरह आराधना करनी है, But rather it is you as a part of the family where the whole family worships. परंतु उसके अंदर तो आप भी उस परिवार के सदस्य होके, परिवार में भाग होके आप देखें कि पूरा परिवार एक साथ मिलकर कैसे आराधना करता है And the whole family learns. और पूरा परिवार सीखता है। So, at this point, after doing some Bible memory, और यहाँ पर कुछ बाइबल के वचनों का अध्ययन करके मुखपाठ करने के बाद you could read some scripture. उसके बाद आप कुछ शास्त्र पाठ पढ़ सकते हैं। Doesn't have to be a lot. बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, You can pick where it is. आप जहां से वहां से आप पढ़ सकते हैं। In my home, we're just about to start on the book of Revelation. हमारे घर के अंदर हम अभी बस प्रकाशित वाक्य को पढ़ने वाले हैं अभी। And we're going there not because I perceive myself to be an expert on Revelation, और हम वहां पर वो पुस्तक को इसलिए नहीं पढ़ने वाले क्योंकि मैं अपने आप को इस पुस्तक के ऊपर बहुत ही विद्वान मानता हूँ, it's just the opposite. पर ये तो उसका एकदम विरोधाभास है, So I can learn too. ताकि मैं खुद भी सीख सकूं उसमें से। Now, over the years, there have been times when I had small children और बहुत सारे साल ऐसे गए हैं जब मेरे पास छोटे बच्चे थे, that instead of reading from the Bible, जब मैंने बाइबल में से पढ़ने के बजाय I would read from a children's story Bible. और मैं बच्चों की वो जो कहानियों वाला बाइबल रहता है उसमें से पढ़ता था, You know, where one chapter tells you about David and Goliath, जिसके अंदर एक उसका अध्याय शायद दाऊद और गोलियत के बारे में बताए, another chapter tells you about Daniel in the lion's den. और फिर उसके बाद जो शेरों की मांद में दानियल था दूसरी कहानी उसके बारे में बताए। Well, those books are definitely not Bibles. वो किताबें बाइबल नहीं है। I didn't feel bad because I wanted to get the overall flow in my children's head. मुझे बुरा नहीं लगा वो पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो मेरे बच्चों के दिमागों के अंदर, उनके मनों के अंदर एक पूरी ऐसी स्रोत उनके मन में रखना चाहता था किस तरह से घटनाएं हुई। So you can go through a book of the Bible आप एक पूरी बाइबल की किताब में से पढ़ सकते हैं or through the whole Bible. या फिर आप पूरे बाइबल में से पढ़ सकते हैं। And after you read the Bible, और बाइबल को पढ़ने के बाद at this point you can give a brief sermon. और इसके बाद इस समय आप शायद छोटा सा एक संदेश दे सकते हैं, Usually somewhere between 20 and 30 seconds. कहीं 20 या 30 सेकंडों के बीच में। This does not have to be a big production. और यहाँ पर इसे कुछ बड़ा बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। You don't have to devote 20 hours of your week to preparing for your nightly sermon. और आपको हर रात के अध्ययन के लिए, आराधना के लिए आपको 20 घंटों की तैयारी करने की जरूरत नहीं है।
All you have to do is ask yourself, आपको बस जो करना है वो इतना है कि अपने आप को पूछना है, how does this text instruct us? ये जो वचन है, ये जो शास्त्र पाठ है, वो हमें किस तरह से सूचना देता है। This is a great time to practice the corollary to the R.C. Sproul Jr. principle of hermeneutics. ये एकदम सही समय है जिसके अंदर हम आरसी स्प्राउल जूनियर बाइबल के अध्ययन, बाइबल का अनुवाद करने का जो तरीका है, उसमें से नियम हम सीख सके। Which means that you ask yourself, who is the sinner in this story? जिसके अंदर आप पूछे कि ये जो कहानी या शास्त्र पाठ हमने पढ़ा, उसमें से पापी कौन है, And then remind yourself, that's me. और फिर अपने आप को याद कराए कि वो मैं हूं। This is a great blessing for you, ये आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है, but also for your wife and children. परंतु आपके पत्नी और आपके बच्चों के लिए भी। It's a good thing for the whole family to learn that daddy is a great repenter. पूरे परिवार के लिए ये सीखना बहुत ही जरूरी है और अच्छा है कि मेरे पिता जो है या फिर घर के पिता जो है वो बहुत ही अच्छे पश्चाताप करने वाले हैं। At this point, after the sermon, और संदेश खत्म होने के बाद अभी, it's my habit to take prayer requests. और उसके बाद मेरी आदत ये है कि मैं प्रार्थना विनंतियां लेता हूँ। How can daddy pray for you today? आज पापा आपके लिए किस प्रकार प्रार्थना करें? Now, there's nothing at all wrong with the children praying as well, बच्चे प्रार्थना करें, उसमें कुछ गलत नहीं है, but by having me do it, परंतु जब मैं ये करता हूँ, I'm reminding them, and more importantly, me, मैं उनको याद दिलाता हूँ और उससे महत्वपूर्ण मैं अपने आप को ये बात याद दिलाता हूँ that I'm responsible for the spiritual well-being of our family. कि मैं मेरे परिवार की आत्मिक जीवन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। And so I would pray fervently and faithfully और फिर according to the children's requests and my own. और फिर मेरे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार के विनंतियों के अनुसार मैं प्रार्थना करूंगा अच्छे से। And at that point, if you wish, you can move into a song or two. और उसके बाद शायद आप एक आध दो गाने भी गा सकते हैं। That's it. बस उतना ही। It's not complicated. It's not time consuming. ये समय लेने वाला नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, But remember, it's not a duty, it's a joy. परंतु याद रखिए ये कोई भी प्रकार की आपकी सेवा नहीं है, परंतु ये तो आनंद है। Let's imagine at this point that I've persuaded you ought to do this. और आप बस अगर आप कल्पना कीजिए, अगर मैंने आपको इस किस को करने के लिए अगर आपको मैंने प्रोत्साहन दिया तो। Maybe you're thinking, I should do this. बहुत सारे में से आप लोग सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए। What do I do about the fact that I haven't been doing this? मैं इस बात का क्या करूं कि अब तक मैंने इस चीज को नहीं किया है। Here's what you do. आप ये करें, You gather your family together आप अपने परिवार को एक साथ बुलाइए and you sit them down और उनको बिठाइए and you tell them that you're sorry that you have failed them in this way. और आप उनको बिठाकर कहिए कि आप उनसे माफी मांगते हैं कि अब तक मैंने इस चीज को नहीं किया। The next thing you do is you tell them that Jesus came to earth to suffer the wrath of God for these failures. और फिर उसके बाद आप उनसे कहिए कि इसी प्रकार की मानवता की निष्फलताओं के लिए यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा भेजे गए ताकि वो अपने पिता के कोप को हमारे लिए सह ले। And remind them of how grateful we should be that our sins are forgiven. और आप उनको याद कराइए कि कितने हमें आभारी होना है, कितने हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि हमारे पापों को वहां पर माफी मिल चुकी है। Then you pray in thanksgiving for that forgiveness and you sing in light of that forgiveness. और फिर उसके बाद वो माफी के लिए आप उनके लिए उन परिवार के साथ धन्यवाद की एक प्रार्थना करें और उसके बाद उसी के प्रकाश में आप गाना गाए। That's day one. वो पहला दिन है। You've just done it. आपने बस शुरू किया है। You've just started. आपने बस शुरू ही किया है। If you've done this in the past and you've fallen out of the habit, अगर आपने भूतकाल में किया है, शुरू किया था और फिर आप धीरे-धीरे बंद हो गए, this same pattern will work for you. और फिर से एक बार इसी प्रक्रिया को आपको करना पड़ेगा। Gather the kids, repent, explain Jesus, and rejoice.
परिवार को इकट्ठा कीजिए, पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह के बारे में बताइए, धन्यवाद कीजिए और आनंद कीजिए। Okay, RC, but what if I'm too busy? अरे ठीक है आरसी, परंतु ऐसा क्या होगा अगर मैं बहुत ही व्यस्त हूं तो? I have an easy solution for you. इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है आपके लिए। Stop being too busy. आप बहुत व्यस्त होना बंद कर दीजिए। What could possibly be more important? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? God is inviting you to lead your family in walking with Him in the cool of the evening. और संध्या के उस ठंडे से समय के अंदर परमेश्वर जो है आपको बुला रहा है ताकि आप अपने परिवार के साथ उनके साथ चलने के लिए आप जाए। Will you tell Him, thanks for the invitation, but there's something I want to watch on television? क्या आप उनसे ऐसे कहेंगे कि आपके न्योते के लिए आपका धन्यवाद, परंतु टीवी पर मुझे कुछ देखना है? Or would you say to Him, I'd love to meet with you tonight, but I have an important meeting with or I have a meeting with someone important. परंतु क्या या फिर आप उनको ऐसा कहेंगे कि आपको मिलना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, पर आज तो मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण एक मीटिंग है। No one is too busy to draw near to the living God. कोई भी जीवित परमेश्वर से पास जाने के लिए, जीवित परमेश्वर के पास जाने के लिए व्यस्त नहीं है। No one is too busy to lead his family to draw near. कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं हो सकता कि अपने परिवार को परमेश्वर के पास ले जाने से वो अपने आप को दूर रखे। No one is too busy for joy. कोई भी व्यक्ति आनंद के लिए इतना व्यस्त नहीं है। Don't do this to be holy, do it to be happy. ये चीज को पवित्र होने के लिए ना करे, परंतु ये चीज को आनंदमय होने के लिए करे, Which in the end is the same thing. जो अंत में दोनों एक ही बात है। Do this, friends, that you might both glorify and enjoy Him now as well as forever. आप ये करिए ताकि आप उनमें आनंद मना पाए और आप उनकी महिमा करने पाए, अभी और अभी से लेकर अनंत काल तक। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, I thank you for this time together. I thank you for the glory of the work of your Son, that we are covered in His blood and that we are able to come before you in worship, in prayer, and in praise. Father, I ask that you would give us a deeper grasp of that reality and that you would help us to help our children come to this same understanding. Lord, you are our joy. You are our delight. And so I ask that you would lead us and guide us, that we would come before you daily as a family to glorify your name. And Father, we ask this in the powerful name of Jesus, our Savior. Amen.